एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप ये अनुभव करवाते हैं अशरीरी बोध, इसका अध्यात्म में उपयोग क्या है? शरीर से बाहर निकल भी गए या अपने आप को महसूस भी कर लिया बाहर, तो इससे अध्यात्म में होगा क्या? Yesterday, one of my friends asked me that we are having out-of-body experiences. What is the actual use of this experience in the spiritual journey? मैंने उससे कहा, मेरे देखे ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, इसको दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है हमारा जन्मों जन्मों से एक गलत तादात्म्य जुड़ गया है, उस गलत तादात्म्य को तोड़ना होगा। जैसे मैंने मान ही लिया कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे नाम से मेरा तादात्म्य जुड़ गया है। इस शरीर को मैं मानता हूँ कि ये मैं हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारी जो जीवन शैली है उसी तरह की थी, और बल्कि कई जन्मों से। क्योंकि जब तक मैंने अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना, तब तक तो मैं यही जानता हूँ कि मेरा होना यही है, ये शरीर हूँ मैं, ये मन हूँ मैं, ये भावनाएं ही मैं हूँ, और मैं इसी भ्रम में जीवन में जीता चला जाता हूँ। I replied, if you ask me my experience, that I can just tell this spiritual journey that there are two parts. And one is the wrong association what I had with my body, with my mind, with my emotions, from lives and lives. Just I am thinking that I am this. The first part is that I have to break this wrong association. Because unless and until you will break this wrong association, you can't have a right association. और जब तक इस गलत तादात्म्य को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक सही तादात्म्य से मैं जुड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा तादात्म्य गलत बन गया है। और दूसरा चरण है सही तादात्म्य कि मैं हूं कौन। और यही अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न भी है कि मैं कौन हूं, मेरा होना क्या है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, मैं आत्मा कहो, कॉन्शियसनेस कहो, किसी भी शब्द से इसे जानो। ना जो कभी मरती है ना जन्म लेती है। शरीर तो बदला जाता है, लेकिन मैं वही हूं, कभी इस शरीर में, कभी दूसरे शरीर में, कभी किसी जन्म में कुछ शरीरों से मेरा तादात्म्य जुड़ा, लेकिन उनके भीतर भी वही चैतन्यता है जो मेरे भीतर है। तो सही तादात्म्य मुझे स्वयं को जानना है। एंड द राइट एसोसिएशन, once I break this wrong association, then only I can have a right association. Who am I? And this is the $1,000,000 question of the spirituality. Who am I? But what that means is, I am a consciousness, I am a soul, I am this eternal, whatever you want to give the name. But unless and until you break this wrong association, you can't have a right association. And this right association is what meditation is the only way. You go inside. You found what you are. Because you keep on living one layer. I'm not the body. I'm not the mind. I'm not the emotions. Then what it remains? The nothingness, the emptiness, that's me. And it is not enough to have an experience. You have to feel and you have to live like that. You have to make a strong association with this nothingness, this emptiness. And then when you die,
You will leave the body, but your right association will work. And this is the spirituality. That you will feel yourself that you are a space. There will be no fear. You will be comfortable even after leaving the body. And that comfort, that peacefulness what you have, that will make you relax there also. And then you can have a choice that you will wait for the right womb if you have to rebirth. But if you are in the panic, insecurity, fear, then whatever the womb, the first is available, existence will provide you that womb, no matter you want that or not. That's why Osho has explained that once you die, if you have to rebirth, the nature from 3 days to 40 days, in between those, will give you the new body, new womb. But when we are here in the body, then only we can practice that peacefulness without body. We can feel, we can watch all the 3 layers, body, mind and emotions. Whatever is happening on these 3 layers hardly affects me. And this is actually the spirituality. और सही तादाद में जुड़ते ही होगा क्या? जैसे ही मेरा सही तादाद में जुड़ेगा, मैं स्वयं को अनुभव करूंगा मैं चैतन्य हूं. और अनुभव करना ही पर्याप्त नहीं कि आपने ध्यान की गहराइयों में जान लिया कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, भावनाएं नहीं है, आप ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो. ये अनुभव करना पर्याप्त नहीं है. उसके साथ गहरा तादात्म्य जोड़ना होगा, उस शून्यता के साथ, अपने भीतर की चैतन्यता के साथ. और इसी जीवन में उस गहरे तादात्म्य को बनाकर वही चैतन्य बनकर जीना होगा. शरीर मेरा मित्र, मन मेरा मित्र, भावनाएं मेरे मित्र, लेकिन मैं नहीं हूं, मेरे मित्र हैं वो. और जब तक मैं अपना सही तादात्म्य जानकर वैसे जीना शुरू नहीं करूंगा, तब तक ये अनुभव भी 2 कौड़ी का है. बहुत सारे मित्र इस भ्रांति में होते हैं कि हमने कुछ अनुभव कर लिया तो बस हो गया. प्लीज इस भ्रम में मत रहना. यहां तक का बुद्धत्व का अनुभव भी 2 कौड़ी का है, क्योंकि बुद्धत्व के अनुभव में होगा क्या? आप यही तो प्रगाढ़ता से जानोगे अपने सत्य स्वरूप को. और जब तक वही बनकर जियोगे नहीं, उस अनुभव का करोगे क्या? क्योंकि अनुभव तो हो सकता है. ओशो की इतनी सशक्त विधियां हैं, भगवान शिव ने मां पार्वती जी को इतनी सशक्त विधियां दी है कि उन विधियों के माध्यम से पूर्णता से अगर आप उन विधियों को करते हो तो आप उस अनुभव को उपलब्ध हो ही जाओगे. शरीर से पार ले जाएंगी ये विधियां, मन से पार ले जाएंगी ये विधियां, भाव से पार ले जाएंगी और आपको अपनी शून्यता में पूरी प्रगाढ़ता से स्थापित कर देगी. और आप लगातार इन विधियों का प्रयोग करते रहो तो शो कहते हैं 46 मिनट तक अगर आप इस शून्यता में स्थिर हो गए, आप बुद्धत्व के अनुभव को उपलब्ध हो जाओगे. लेकिन आप करोगे क्या? मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने बुद्धत्व का अनुभव तो किया, लेकिन उनकी जीवन शैली में उसकी कोई भी सुवास नहीं थी. और जब तक वो सुवास हमारे शरीर तक ना आ जाए, तब तक उस अनुभव का कोई अर्थ नहीं. इसलिए वो तादात्म्य जोड़कर जीना होगा कि मैं शून्य हूं, मैं चैतन्य हूं. पल पल ये एहसास बना रहे, उठते बैठते, सोते जागते. शरीर मित्र की तरह है, ये मन मेरे मित्र की तरह है, मेरा दुश्मन नहीं. चाहकर कभी शरीर के तल पर जाके जियो ना, चाहकर होश से कभी मन के तल पर भी चले जाओ, कभी भावनाओं में भी रहो. इसका परहेज नहीं है, लेकिन मूर्छा से नहीं, होश से. And once you have the right association with the consciousness, and if you are not living like that, then this is of no use. Because the techniques of meditations are so strong.
either Osho's techniques, what he has given, or you go back and Lord Shiva has given Ma Parvati so many techniques, you can use them. And with those techniques, you can go beyond your body, mind, and emotions, and you can attain your nothingness as an experience. And you be there for 46 minutes, what Osho is saying, and you got the experience of enlightenment. But what is the use if that experience is not in your day-to-day living? I have met so many people in my life who attained the experience of enlightenment, but they have not practiced to just have that experience into their living style. What is the use? A small experience of the meditation is useful once it becomes your way of living. एक छोटा सा अनुभव ध्यान का भी पर्याप्त है अगर आपने उसे जीवन का हिस्सा बनाया. अगर वो जीवन का हिस्सा ही नहीं बनेगा तो क्यों अपना समय बर्बाद करना? Don't waste your time, don't waste your money. If experiences are not to involve in your day-to-day living, you have to be more loving, more compassionate, more aware. And this is the use of this experience of the outer body. That you break the wrong association that you are not the body. Suddenly. In this 6 days, if you have once, twice, or thrice experience, that's also enough to understand strongly that I am not the body. And you break this wrong association and you come to your real association. और इन 6 दिनों में अगर 1, 2, 3 बार भी ऐसा अनुभव हो गया चैतन्यता का इतनी प्रगाढ़ता से कि आपने शरीर से अलग थलग अपने आप को प्रगाढ़ता से जान लिया, वो भी पर्याप्त है उस जीवन शैली को उपलब्ध होने के लिए कि मैं हूं कौन. इसलिए प्यारे मित्रों, समझ कर ध्यान करना. And dear friends, understand the meditation. Understand what is the use of experiences. Understand your life. And then meditate. और जब तक पूरी तरह से समझ को विकसित नहीं करोगे, ओशो ने इतना कहा है जीवन के बारे में, कैसा जीवन, किस तरह से जीना है. ध्यान के बारे में देखोगे तो आपको 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा उनके प्रवचनों में जितना उन्होंने बोला. किस लिए? वो समझ देने के लिए. जागरूकता, 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 अवेयरनेस, 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 अवेयरनेस. लिव मोमेंट टू मोमेंट, लिव मोमेंट टू मोमेंट, लिव मोमेंट टू मोमेंट. क्षण क्षण जियो. ये सब हमारे जीवन के लिए है. एक बार मुझसे किसी ने पूछा ओशो की देशना में हाईएस्ट क्या है. मैंने उससे कहा कि जीवन. कहते फिर परमात्मा की बात तो बहुत होती है. मैंने कहा मेरे देखिए परमात्मा भी 2 नंबर पे है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान होने के बाद उसे जीवन में ही तो जियोगे. परमात्मा भगवत्ता होकर जीवन में ही तो जियोगे. अनुभव हो भी गया उस दिव्यता का तो अपने जीवन में ही तो लाओगे, अन्यथा उस अनुभव का करोगे क्या? वो कोई कहानी, कोई किस्सा तो नहीं है. परमात्मा मेरा होना है, मैं हूं. मुझसे अलग वो होगा भी कैसे, क्योंकि मैं उसके प्रेम की एक कृति हूं. मैं उसी से उत्पन्न हुआ हूं, मैं उससे भिन्न भी नहीं हूं. तो परमात्मा तो मैं हूं ही, लेकिन बस मन के तल पर रहकर जीना है या मुझे अपनी चैतन्यता के तल पर रहकर जीना है. ये मेरा चुनाव है. और यहां मैं इकट्ठा हुआ हूं इसीलिए कि मैं अपने सत्य स्वरूप को जानूं और वही होकर जियो. One day one of my friends asked me, what is the highest teachings of the
Osho. I said, this life. Then he asked me, then why we are talking about so much of the divine and godliness? I told him, once you have the experience of the godliness, what you will do with that? That has to be a part of life. You are the godliness. You are the divine. You are not less than that. You are the highest expression of this divine. Because you have come from the divine. Just realize that, what you are, not less than divinity. Feel it, experience it and live it. That's it. उसे महसूस करो, अनुभव करो और वही होकर जियो. बस और चाहिए ही क्या? और जीवन एक सुवास बनकर रह जाएगा. हल्का फुल्का नाचता गाता, झूमता, मस्ती से रहता. यही तो है और यही तो मैं हूं. And this life is just like the song, the dance, the celebration. Because not less than anything you are.